તો હવે સમાચાર મોદી સરકાર 3.0 માટે મંત્રીમંડળના નામ નક્કી। ગુજરાતના 4 સાંસદો બનશે મંત્રી। અમિત શાહ, મનસુખ માંડવિયા બનશે મંત્રી, તો એસ જયશંકર બનશે મંત્રી। જેપી નડ્ડાને પણ મળી શકે છે મંત્રીમંડળમાં સ્થાન। તો હાલ આ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર કે જેમાં ગુજરાતમાં આ વખતે મંત્રીમાંથી કટઓફ થઈ શકે છે, 4 મંત્રી બની શકે છે એવા સૂત્રો દ્વારા માહિતી છે, જેમાં અમિત શાહ તો હોઈ શકે, સાથે સાથે મનસુખ માંડવિયા અને એસ જયશંકર મંત્રી બની શકે છે। વધુ વિગતો સાથે અમારા આઉટપુટ હેડ મનીષ પુરોહિત દિલ્હીથી લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। જે મનીષ, અમુક સાંસદોની ફોનની ઘંટડી વાગી ગઈ છે, તેમાં ખાસ કરીને ગુજરાતમાં આ વખતે કેટલા મંત્રીને સ્થાન મળી શકે છે કેબિનેટમાં? હિના, સૌથી ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ છે કે તમામ જે ઘંટડીનો અવાજ તમને જે સાયરન વગડાઈ રહી છે પોલીસની ગાડીઓના કાફલા સાથે એક પછી એક નેતાઓ જે પીએમ હાઉસમાં જઈ રહ્યા છે, એ તમામ એ નેતાઓ છે કે જે હવે થોડી વારમાં નક્કી થઈ જશે કે એ લોકોને કયા ખાતાઓ મળવાના છે, કયા મંત્રીઓના નામ નક્કી થઈ ગયા છે। કારણ કે આ તમામ એઝમ્પશન વચ્ચે જે લોકોને અહીંયા બોલાવવામાં આવે છે પીએમ આવાસ પર, એ તમામ મંત્રી બનવાના છે। એમાં ગુજરાતના 4 સાંસદો છે જેના નામ અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે, જેમાં અમિત શાહનું નામ કન્ફર્મ છે। એની સાથે જેપી નડ્ડા અને એસ જયશંકર જે બંને ગુજરાતથી રાજ્યસભાના સાંસદ છે। આ ઉપરાંત આ વખતે પોરબંદરના સાંસદ મનસુખભાઈ માંડવિયા ફરી એકવાર મંત્રી બનવાના છે, વાત લગભગ નક્કી છે। અને એની સાથે સાથે ગુજરાતમાંથી હજુ એક નામની પણ શક્યતા છે। સીઆર પાટીલના નામની ચર્ચા ચાલી રહી હતી કે સીઆર પાટીલ પણ અહીંયા મંત્રી બની શકે છે, અથવા તો કોઈ યુવા ચહેરાનું સ્થાન પણ એમાં કોઈને આપી શકવામાં આવે એવી તેવી પૂરી શક્યતાઓ છે, જેમાં ધવલ અથવા તો હેમાંગ જોશીની પણ ચર્ચા થઈ રહી છે। પરંતુ આ બધાની વચ્ચે જે આ બધી જ અટકળો છે, તમામ અટકળો વચ્ચે એક મોટી વાત એ પણ છે કે આ તમામ લોકો આજે જ ક્લિયર થઈ જશે। આ તમામ મંત્રીઓ આજે શપથ લેવાના છે પ્રધાનમંત્રી મોદીની સાથે। લગભગ 52ની સંખ્યા રહી શકે છે મંત્રીમંડળમાં, પરંતુ તમામ ગતિવિધિઓ જે દિલ્હીમાં ચાલી રહી છે, પીએમ હાઉસની બહાર કેમેરાઓનો ખડકલો છે, મીડિયા કર્મીઓનો જમાવડો છે, આ બધાની વચ્ચે જે માહોલ જામેલો છે, પોતપોતાના સમર્થક જે મંત્રીઓના જે પરિવારજનો છે એમને પણ અત્યારે દિલ્હી બોલાવી લેવામાં આવ્યા છે। ગઈકાલ સાંજથી આ પ્રકારની પ્રક્રિયા ભારતીય જનતા પાર્ટીને તમામ સાથી દળો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। મારી સાથે મારા સહયોગી अजय यादव पर जुड़ाया है। अजय, ये जो जानकारियां मिल रही है, धीरे धीरे करके इन सबको बुलाया जा रहा है, क्या लगता है कि गुजरात में एक और नाम भी हो सकता है, या फिर गुजरात को जिसे अपन मानते थे लास्ट टाइम 6-7 मंत्री रहे थे, इस बार में क्या लगता है कि ऐसा जो लास्ट टाइम में दबदबा रहा इस बार नहीं होगा? नहीं, एक तरह से कह सकते हैं कि दबदबा तो है। अगर देखें तो अभी 4 नाम तो कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि एक नाम और हो सकते हैं, और वो जोन वाइज देखा जा सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी स्पीच में कहते हैं, ट्राइब्स लीडर को एक तरह से अप्रिसिएट करते हैं और कहते हैं कि किस तरह से ट्राइब्स को आगे बढ़ाना है। तो उसमें माना जा रहा है कि हो सकता है ट्राइब्स इलाके से भी किसी को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन कौन होगा इसके बारे में आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। एक तरफ जहां फुल मेजॉरिटी की उनकी सरकार नहीं है, एनडीए के घटक दल हैं, तो एनडीए के घटक दल को भी संतुष्ट करना एक बड़ी प्राथमिकता है। उसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो जेडीयू है उनसे 3 मंत्री बिहार से बने और 3 मंत्री भारतीय जनता पार्टी से बने। हालांकि 2 नाम अभी कहा जा रहा है कि कंफर्म हो चुके हैं, जिसमें एक जो कर्पूरी ठाकुर के जो बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, उनका नाम कंफर्म हो चुका है। उनके पास लेटर भी आ चुके हैं। संदेश न्यूज़ के साथ उन्होंने बातचीत में भी कहा कि मिलीजुली सरकार जो है उसमें किसी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं, जिस तरह से पिछली सरकारें चलती रही उसी तरह से ये भी चलेगी। दूसरा नाम जो है ललन सिंह का कहा जा रहा है कि वो एक तरह से कंफर्म है। हालांकि ललन सिंह अभी पीएम हाउस पे आए हैं या नहीं आए हैं, इसके बारे में अभी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता। केसी त्यागी का भी नाम एक आगे चल रहा है, क्योंकि केसी त्यागी एक दिग्गज लीडर है, और जो भी नीतीश कुमार को कुछ करना होता है, अगर किसी से संबंध बिगाड़ना होता है या बनाना होता है, तो केसी त्यागी ही वो चेहरा है जो लगातार स्टेटमेंट के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल अभी एनडीए के पक्ष में वो माहौल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और माना जा रहा है कि उनका भी नाम हो सकता है। इसी तरह से मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान, जो कि पिछली बार फुल मेजॉरिटी की विधानसभा में सरकार बनने के बावजूद वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने, तो क्या ये इस बार वो मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? अभी नाम जो है वो अभी तक सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो यहाँ लोग पहुंचे हैं यहाँ पर पीएम हाउस पर, तो उनमें शिवराज सिंह चौहान का नाम जो कहीं नहीं सामने आ रहा है। तो क्या लगता है कि शिवराज सिंह का जो अभी ये भी एक शक्यता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना जाए, क्योंकि जेपी नड्डा यहाँ पहुंच चुके हैं, वो शपथ लेने वाले हैं, तो वो भी एक अटकलें शुरू हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है उस पर?
देखिए, निश्चित तौर पे शिवराज सिंह चौहान का जो नाम है वो जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष के बतौर वो भी चल रहा है, लेकिन संभावना इस बात पे जताई जा रही है कि उनको हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा जो संभावना है कि मंत्रिमंडल में जरूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा धड़ा है जो चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान को कोई न कोई पुरस्कार दिया जाए। और जब उनको कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तब भी ये आश्वासन दिया गया कि उनकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र में उसका उपयोग किया जाएगा। तो माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद पे जाने की बजाय उनको मंत्री बनाना ज़्यादा मुफीद भारतीय जनता पार्टी या कह सकते हैं मोदी सरकार की लीडरशिप समझेगी। हालांकि अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा उनके नाम की एक चर्चा जरूर चल रही है। इसी तरह से राजस्थान की अगर बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत, वहाँ पे भी मीडिया कर्मियों का तांता लगा हुआ है। हालांकि ये कंफर्म नहीं हुआ कि क्योंकि क्या उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, नहीं शामिल किया जाएगा। इसी तरह से अर्जुन राम मेघवाल जो कि खुद लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, तो माना जा रहा है कि वो जरूर शामिल किया जाएंगे, क्योंकि वो दलित समुदाय से भी आते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बार कोशिश होगी, क्योंकि इस बार का जो रिजल्ट आया है कहीं न कहीं ये मैसेज दिया है कि उत्तर भारत का खास करके जो हिंदी स्पीकिंग इलाके हैं वहाँ पे कास्ट इक्वेशन बहुत मायने रखता है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और खास करके बिहार में भी 10 सीटें अगर जीती है तो उसके पीछे कास्ट इक्वेशन है। तो इस बार राजस्थान से लेकर के जितने भी हिंदी बेल्ट हैं उस कास्ट इक्वेशन को साधने की कोशिश की जाएगी, जिसमें दलित पिछड़े समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं या आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको जरूर शामिल किया जाएगा। एक नाम राव इंद्रजीत का भी चल रहा है, क्योंकि राज बब्बर को उन्होंने गुरुग्राम से हराया है और चूंकि वो अहिर समाज के बड़े लीडर माने जाते हैं और हरियाणा में जो अहिर समाज है कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर कहा जाता है। तो ऐसे में एक रिप्रेजेंटेशन माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह जो है उनको दिया जा सकता है। हालांकि अभी उनकी गाड़ी यहाँ पे नहीं आई है। अच्छा, ये एक जो बात ये भी चल रही है कि यूपी का जो है इस बार भी साइज टू कट होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को इस बार झटका दिया। दूसरी बात ये है कि केरला से पहली बार बीजेपी ने खाता खोला है, तो वो जो सांसद चुने गए हैं वो भी हो सकता है कि मंत्री बन जाएं। देखिए, निश्चित तौर पे केरला से जो सांसद चुने गए हैं वो निश्चित तौर पे मंत्री बनेंगे। और उसकी वजह यही है कि केरला एक ऐसा राज्य है जहां पर वामपंथ हिंसा या कह सकते हैं कि यूनाइटेड जो फ्रंट है उसकी भी हिंसा का शिकार जो आरएसएस के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। और जो भी वहां पे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स हैं या आरएसएस के वर्कर्स हैं, कह सकते हैं कि अपने सर पे कफन बांध करके पार्टी की गतिविधियों में शामिल होते हैं। तो ऐसे में पार्टी की कोशिश होगी कि एक मंत्री वहां से दिया जाए, ताकि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उनका मनोबल बढ़े। और लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे साइज ही काफ़ी छोटा हो गया है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश से रिप्रेजेंटेशन जो पिछली बार जितना था उतना तो नहीं होने वाला है। अभी तुरंत कोई विधानसभा चुनाव भी वहाँ पे नहीं होने वाले हैं, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि चूंकि वहाँ पर पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साथ करके कांग्रेस और बीजेपी वहां पर बड़ी संख्या में सीटों को लाने में कामयाब रही है। तो इस बार भी वहां से जो जिन लोगों को चुना जाएगा, एक तरफ जहां कोशिश होगी कि अपर कास्ट को भी संतुष्ट किया जाए, लेकिन पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक को छोड़ दीजिए, पिछड़े दलित समाज से वहां पे रिप्रेजेंटेशन जरूर दिया जाएगा। एक बात और भैया अजय कि वो कश्मीर की बात है, खासतौर पर बीजेपी के जो 2 सांसद जम्मू से चुन के आए, क्या लगता है कि कश्मीर क्या भी एक मंत्री हो सकता है? निश्चित तौर पे हो सकता है, क्योंकि भी होने विधानसभा, हाँ, क्योंकि जितेंद्र सिंह पीएमओ में बहुत अच्छा काम करते हैं और कश्मीर को भी कहीं न कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लीडर की जरूरत है जो वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है या कह सकते हैं कि जो हिंसा की घटनाएं होती है उसके खिलाफ मुखर आवाज बन के उभरे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जितेंद्र सिंह स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर हो सकते हैं और उनका नाम एक तरह से नक्की माना जा रहा है, लेकिन अभी उनकी भी गाड़ी प्रधानमंत्री आवास पे नहीं आई है। तो જેમ જેમ ગાડીઓ અહીંયા પહોંચી રહી છે એમ કયાસો તેજ થઈ રહ્યા છે કે કોને કોને લોટરી લાગી છે। આ તમામ વાતો અહીંયા જે દ્રશ્યો જે દેખાઈ રહે છે કોની કોની ગાડીઓના કાફલા જે તમે મારા બતાવીશ તમને દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે આ પીએમ હાઉસની બહાર આ ગાડીઓનો કાફલો પડ્યો છે। એક પછી એક ગાડીઓ જે મંત્રીઓને જે બનવાના સંભવિત મંત્રીઓ છે એમને છોડીને આ ગાડીઓ અહીંથી નીકળી રહી છે। એના પરથી કયાસ લાગી રહ્યા છે કે આ કોનો કાફલો હોઈ શકે છે અને કોણ અંદર ગયું છે। પરંતુ આ બધાની વચ્ચે ગુજરાત ક્યાં છે એ સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે, કારણ કે ગુજરાતના તમામ सांसदों સાથે અમે સંપર્ક કર્યો। ગઈકાલથી લઈને અમે એમ લોકો સાથે વાતચીત કરી રહ્યા હતા। જે લોકોને ફોન આવવાના હતા એ અંગે અમને પણ સમાચારો ધીરે ધીરે ત્યાંથી મળતા રહેતા હતા। એ જ પ્રક્રિયાની આગળ વધતા અમને મનસુખ માંડવિયાની વાત કન્ફર્મ સાબિત થઈ રહી છે। મનસુખ માંડવિયા ફરી એકવાર સરકારમાં એક મોટા સ્થાન પર જોવા મળશે, એમાં કોઈ જ બેમત નથી। હિના જી મનીષ અને અજય અમારી સાથે જોડાયા, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આભાર।